کہ میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو دلیل کی کے زور پر کرتا ہوں اور دلیل کی بنیاد پر کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس واقعی مضبوط دلیل ہے تو ایک حنیف قریشی اور ایک طارق مسعود نہیں، 1000 طارق مسعود اور 1000 حنیف قریشی آ جائیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ کی دلیل مضبوط ہوگی اور آپ کو رکھنے کا سلیقہ بھی ہے. ایک آدمی اگر بند کمرے میں بیٹھ کر بس اپنی بات کرتا رہے اور چیلنج بھی کرتا رہے، اور پھر جب اس کے یہاں لوگ پہنچے بات کرنے کے لیے تو وہ دروازے نہ کھولے، دروازے بند کر کے بیٹھ جائے، کہے کہ جی امی اجازت نہیں دیتی بات کرنے کی، امی نے منع کیا ہوا ہے. تو جب ایک آدمی مناظروں کے خلاف ہے، آپ اس کو یہ کہیں کہ نہیں میں تو ان سے مناظرہ کروں گا، وہ سامنے آ کر بیٹھے، اور پھر وہ آدمی کے ایسی شخصیات کہ ائمہ حرم جن کے سامنے زانوائے تلمس طے کرنے کو، جن کے ساتھ سامنے پڑھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہوں، ان کو آپ یہ کہیں کہ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھے تو میں مناظرہ کروں گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن میں ہے نا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. آج ہم جس مسئلے کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس کے لیے میں نے اس مسئلے کے ایک ماہر کو آج دعوت دی ہے. تو انشاءاللہ 2-3 منٹ میں ان کو اسٹیج پر لیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک چیز پر تبصرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ تبصرہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر اور کچھ بھارتی حلقوں میں بھی ایک چیز کا چرچا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج 26 نومبر کو ایک بریلوی مسلک کے عالم دین مفتی حنیف قریشی صاحب انجینئر صاحب کی اکیڈمی گئے تھے جہلم. تو بہت سے لوگوں کو اس کا انتظار تھا کہ بھائی دیکھیں مناظرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. خیر مناظرہ تو نہیں ہونا تھا، یہ بات تو طے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرات اتمام حجت کے لیے جہلم پہنچے تھے انجینئر صاحب کے یہاں. میں بنیادی طور پر مسلکوں کے درمیان مناظروں کے خلاف ہوں، اور اس تعلق سے میرا موقف آج کا نہیں ہے بلکہ کئی سال پہلے کا یہ موقف ہے. اور اس موقف کی وجہ سے بہت سے وہ حضرات کے جو خود فکری طور سے مجھ سے متفق ہیں لیکن ان کا مجھ سے اس بات پر اختلاف ہوا. میں نے باقاعدہ اس تعلق سے ایک لمبی چوڑی تحریر بھی لکھی تھی کہ جس میں نے بہت سے علماء کے حوالوں سے یہ بات درج کی تھی کہ مسلکی مناظریں دراصل حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ ان مناظروں سے امت کی خلیج میں مزید اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بنیادی موقف ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے جو انجینئر صاحب سے مناظرے سے ریلیٹڈ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہ مختلف اس معنی گر ہے کہ انہوں نے آلریڈی امت میں جتنی خلیج تھی اس کو پاٹنے کے بجائے اس میں اضافہ ہی کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر وہ یہ کہتے کہ میں مناظروں کا قائل نہیں ہوں میں کسی سے مناظرہ نہیں کروں گا تو ٹھیک ہے، بات مناسب تھی کہ بھئی میں اپنا موقف رکھتا ہوں، آپ کو اچھا لگتا ہے آپ قبول کیجئے اور آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ مسترد کر دیجئے، میں مناظروں کا قائل نہیں ہوں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں مناظرے کا قائل ہوں لیکن میں اس وقت کروں گا کہ جب آپ فلاں مسلک کے فلاں عالم سے اور فلاں مسلک کے فلاں عالم سے لکھوا کر لائیں. حالانکہ یہ جو مکاتب فکر ہوتے ہیں یا آپ ان کو لوز لینگویج میں مسالک کہہ لیں، یہ مکاتب فکر ہیں. تو ان مکاتب فکر میں کوئی سنگل اتھارٹی نہیں ہوتی کہ بھئی ایک عالم ہے وہ اتھارٹی ہے. ہاں کچھ علماء سینئر ہوتے ہیں، کچھ جونیئر ہوتے ہیں، کچھ مڈل ایج ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ اور ہر نظام اور ہر ادارے میں اس طرح کے افراد مل جائیں گے. حکومت میں آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ افراد سینئر عہدیدار ہوں گے تو کچھ جونیئر ہوں گے. آپ فوج میں دیکھ لیجئے کچھ افراد سینئر عہدیدار ہوتے ہیں تو کچھ جونیئر ہوتے ہیں. ایسے ہی مکاتب فکر مدارس ہیں کہ ان میں کچھ سینئر عہدوں پر ہیں تو کچھ جونیئر. مکاتب فکر میں کوئی عہدہ نہیں ہوتا. ایک آدمی اپنے علم کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اس کی جو بھی تعظیم و توقیر ہوتی ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ اس میں کوئی عہدہ نہیں ہے کہ جی فلاں صاحب جو ہیں فلاں مفتی صاحب وہ فلاں مسلک کے پریزیڈنٹ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ مطالبہ اپنی جگہ ایک
समझ लीजिए कि बचकाना मुतालबा है। मैं बहुत एहतियात से अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, और उसकी वजह यही है कि मेरा मकसद हरगिज भी उम्मत में तफरीक और इंतशार पैदा करना नहीं है, लेकिन चूंकि एक बड़ा वाकया हुआ है तो उस पर तबसरा करना और अपना मौकिफ सामने रखना भी जरूरी है। तो जब कोई ओहदा मसलकों में होता ही नहीं है, मकतब फिक्र में कोई जिम्मेदारियां तकसीम नहीं होती हैं, तो ये मुतालबा करना कि मैं फला साहब लिख कर दे दें या वीडियो पर बयान दे दें तो मैं तब मुनाजरा करूंगा, ये गलत बात है। ये मुनाजरे से राह फरार इख्तियार करना है। और जिन दोनों हजरात का इंजीनियर साहब अक्सर नाम लेते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफीज़हुल्लाह और इसी तरीके से मुफ्ती मुनीब साहब हफीज़हुल्लाह, ये दोनों हजरात अपने अपने हल्के में बड़ा असर रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दोनों ही मुनाजिर नहीं है। बल्कि मुफ्ती तकी साहब के साथ के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि न सिर्फ ये कि वो मुनाजिर नहीं है, बल्कि वो मुनाजरे के खिलाफ हैं यानी खुसूसन जो मसलकी मुनाजरे हैं। और उसकी वजह यह है कि खुद उनके वालिद हज़रत मुफ्ती शफी उस्मानी रहीमहुल्लाह और उनके शेख हज़रत थानवी रहीमहुल्लाह, ये हजरात मुनाजरों के खिलाफ थे, और यही वजह है कि मुफ्ती तकी साहब भी कभी वही मिजाज है। तो जब एक आदमी मुनाजरों के खिलाफ है, आप उसको ये कहें कि नहीं मैं तो उनसे मुनाजरा करूंगा, वो सामने आकर बैठे, और फिर वो आदमी के ऐसी शख्सियात के अइम्मा हरम जिनके सामने जानवाए तलम्मुस तय करने को, जिनके साथ सामने पढ़ने को अपनी सादत समझते हो, उनको आप ये कहें कि वो मेरे सामने आकर बैठे तो मैं मुनाजरा करूंगा। ये ऐसा ही है जैसे कुरान में है ना, हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, कि मैं अल्लाह ताला ने एक ताबीर इख्तियार की है। वो ताबीर ये है कि यहां तक कि ऊंट सुई के नाके से गुजर जाए, और ऊंट सुई के नाके से गुजरने का नहीं तो ये बात कभी होगी नहीं। तो ये इस तरह का ही है कि ये मुनाजरा मैं उस वक्त करूंगा कि जब मुफ्ती तकी साहब या मुफ्ती मुनीब साहब जैसी आलमी शोहरत याफ्ता और ऐसी शख्सियात के जिनका इल्मी मकाम बड़ा बुलंद है, और दूसरे जो मकातिब फ़िक्र हैं वो भी उनकी शख्सियात और उनकी इल्मी कारनामों का एतराफ़ करते हैं, वो मेरे सामने आकर बैठे तो मैं मुनाजरा करूंगा। तो जब एक आदमी मुनाजरे का कायल है तो फिर उसको मुनाजरा करना चाहिए। फिर अगर वो मुनाजरा नहीं कर रहा है और उससे राह फरार इख्तियार कर रहा है, तो फिर यही समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं उसके नैरेटिव में कोई झोल है, या तो वो कमजोर है अपने मौकिफ में, या उसका कोई एजेंडा है, अल्लाहु आलम। तो मैं इससे पहले जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब वहां गए थे उस शहर में जहलम में, तो उस वक्त भी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ था, और उस वक्त ये बहाना बना दिया गया था इंजीनियर साहब और उनके जो भी तलामिजा हैं उनकी तरफ से कि भाई ये तो बगैर बताए आ गए थे। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन अब तो बाकायदा 1 महीने 1.5 महीने की तैयारी से ऐलान करके बता के टाइम पर पहुंचे। और मैंने वो वीडियोस देखी कि जिसमें बाकायदा इंतजामिया और सिक्योरिटी के अफराद जिन्होंने जहलम एकेडमी के सामने इन हजरात को, जो मुफ्ती हनीफ और उनके साथ पहुंचे थे, उनको रोका हुआ है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इंजीनियर साहब 100% गलत हैं। कोई भी आदमी 100% गलत नहीं होता जबकि वो मुसलमान हो और ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात कर रहा हो। कुछ बातें उनकी दुरुस्त भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत सी बातें उनकी गलत भी हैं और उनकी गलत समझ के ऊपर मौक़िफ़ वो मबनी है। तो जब ये बात है तो फिर एक आदमी अगर बंद कमरे में बैठकर बस अपनी बात करता रहे और चैलेंज भी करता रहे, और फिर जब उसके यहाँ लोग पहुंचे बात करने के लिए तो वो दरवाजे ना खोले, दरवाजे बंद करके बैठ जाए, कहे कि जी अम्मी इजाजत नहीं देती बात करने की, अम्मी ने मना किया हुआ है। तो ये बहुत ही अजीब व गरीब एक सूरत हाल है। मैं इंजीनियर साहब के और इसी तरीके से उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस मानकर हमदर्दी रखता हूं कि ये लोग दीन का दर्द रखते हैं। जाहिर है कि दीन का दर्द रखते हैं तो तभी तो इस तरह के उनके यहाँ अफकार पाए जाते हैं कि भाई हम बाबों की नहीं सुनेंगे और औलिया औलिया क्या चीज होती है, हम तो सीधा अल्लाह अल्लाह के रसूल को मानते हैं। जाहिर है कि ये नौजवान नाइट क्लब में जाकर डांस भी कर सकते थे, ये नौजवान शराब में भी मुब्तला हो सकते थे, ये नौजवान
सट्टेबाजी और इसी तरीके से ड्रग्स वगैरह में भी मुलव्विस हो सकते थे। लेकिन अगर ये बैठकर दीन के नाम पर जो भी उनको दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे नौजवान दीनी मिजाज रखते हैं और इस काम के लिए उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उन बुराइयों से बचकर कम से कम दीन के नाम पर आप लोगों ने तवज्जो दी। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में मेरी हमदर्दियां इस मानागर भी उनके साथ हैं कि जिस शख्सियत को वो बहुत ही आला इल्मी और समझ लें कि जिसको वो उसवा समझ रहे हैं, नमूना समझ रहे हैं, तो फिर उस उसवा और नमूने को दरअसल उसवा बनकर और रोल मॉडल बनकर दिखाना चाहिए कि मैं अगर कोई बात करता हूं तो दलील की के जोर पर करता हूं और दलील की बुनियाद पर करता हूं। अगर आपके पास वाकई मजबूत दलील है तो एक हनीफ कुरैशी और एक तारिक मसूद नहीं, 1000 तारिक मसूद और 1000 हनीफ कुरैशी आ जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी दलील मजबूत होगी और आपको रखने का सलीका भी है। तो भाई हम जिस तरीके से हम खुद देखते हैं कि जब हम स्ट्रीम्स करते हैं, हालांकि हमारा मौजू ये मसलकी इख्तिलाफात नहीं है, हमारा मौजू रद्द इल्हाद और रद्द इर्तिदाद है, और इसके अलावा साथ में हिंदू या कभी क्रिश्चियंस एग्नोस्टिक्स वगैरह आ जाते हैं। तो हमारा जो लिंक होता है वो पब्लिक होता है, आम होता है, उसमें कोई भी आ सकता है, बड़े से बड़ा आ जाए, छोटे से छोटा आ जाए। और आज से ये सिलसिला नहीं चल रहा है बल्कि कई साल हो गए हैं, और एक चैनल पर नहीं चल रहा है बल्कि कई चैनलों पर चल रहा है, रोजाना कोई ना कोई स्ट्रीम होती है, तो ये लिंक पब्लिक होता है। और इसके अलावा हमारे जो मुताल्लिकीन अहबाब हैं उनके मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुनाजरे भी होते हैं। अभी मुनाजरा हुआ एवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशन पर। तो बाकायदा जो दूसरे फिक्र के और दूसरे मनहज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या दूसरे दीनों के अदियान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आते हैं, गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हमें लाजवाब कर दे। तो ये भी तो हो सकता था ना कि हम लिंक पब्लिक किए बगैर बस अपनी बात कहते और निकल जाते। बहुत से लोग तब भी सुनते, ऐसा ना होता कि वो लोग ना सुनते, आज भी सुन रहे हैं, तब भी सुनते। इससे पहले, आज से 3 साल पहले मैं तफसीर किया करता था, हर हफ्ते तफसीर होती थी, 4 साल पहले की बात है। तो उस वक्त में लिंक पब्लिक नहीं किया करता था, उस वक्त इस तरह का कोई सिस्टम था भी नहीं, ये स्ट्रीम यार्ड वगैरह कम से कम मेरे इल्म में नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी 1500-2000 लोग तफसीर सुना करते थे लाइव, और बाद में तकरीबन 40-50 हजार तक के उसके व्यूज जाते थे फेसबुक पर। तो पॉइंट ये है कि जब आप किसी भी तरह की एकेडमिक गुफ्तगू करते हैं कि जिसमें सामने वाले पर रद है, चाहे वो मुसलमानों में जो फिरके हैं उन पर रद है और चाहे वो कुफ्फार और जो अदियाने बातिला है उन पर रद है, जब आप रद कर रहे हैं तो सामने वाला ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड करेगा। और जब वो रिस्पॉन्ड करेगा तो ये जरूरी है कि आपका रद और आपके जो दलाइल हैं वो उसी वक्त अप्रिशिएट किए जाएंगे, उसी वक्त काबिल कबूल होंगे उम्मत के सामने कि जब आप सामने वाले के दलाइल सुनकर उसको तोड़ दें। तो मैं मिर्जा साहब से यही कहूंगा कि भाई आप अगर ये चाहते हैं कि लोग इल्मी किताबी बन जाएं, जो ऑलरेडी उम्मत में हर आदमी का दावा है कि भाई वो इल्मी किताबी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपना एक प्लेटफॉर्म जो आपने लॉन्च किया है, जो आगे चलकर फिरका बनना है, ये तय है, ठीक है। और अगर वो और फिरका बनने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके अपने मदारिस और अपने मसाजिद हों। हर जमाने में मदरसे और मदरसों की शक्ल एक नहीं रहती। मस्जिदें तो आज भी खैर उसी शक्ल पर बाकी हैं, मदरसे तो आज ऑनलाइन हो चुके हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो मदरसा तो आपने भी खोला हुआ है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो फिरका या आपकी जमात आप ही अहले सुन्नत वल जमात हो, तो ये जरूरी है कि जब जिन लोगों के ऊपर आप रद्द कर रहे हैं, आप उनके उलमा से अगर आप 10-15 मरतबा नहीं, कम से कम 1-2 मरतबा आप उनसे गुफ्तगू कर लें। मुझे मालूम है कि बहुत सी मरतबा हम भी हर एक से गुफ्तगू नहीं करते, क्योंकि हमें कोई भी चैलेंज दे दे उठा के जी मुझसे गुफ्तगू करो, तो हम उसके यहाँ नहीं पहुंच जाते। हाँ, इल्ला ये कि वो खुद आ जाए तो हम गुफ्तगू करते हैं उसके यहाँ नहीं पहुंच जाते। आपका ये तरीक़ेकार बिल्कुल ठीक है कि आपको कोई भी चैलेंज करेगा तो आप उसको मुंह नहीं लगाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने आपको चैलेंज किया वो अपने मकातिब फिक्र में वो कोई भी लोग नहीं है, बल्कि बाकायदा उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और उनको जाना जाता है, उनको माना जाता है। वो पाकिस्तान में तो जो टॉक शोज होते हैं उस पर वो आते हैं, तो वो कोई मामूली शख्सियात नहीं है कि कोई भी एरा गैरा आपको चैलेंज दे दे और आप अपना टाइम ज़ाय करें। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज का जो ये एपिसोड हुआ है पाकिस्तान में जहलम में, कि जिसमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को सिक्योरिटी वगैरह की मदद से अंदर जाने नहीं दिया गया, ये इंजीनियर साहब की
کی کریڈیبلٹی کے لیے بہت بڑا ڈیمیج ہے. اور یہ ان کے اسٹوڈنٹس کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ آخر ایسی شخصیت کہ جو ہمیں دین کے قریب لانے کی کوشش کر رہی ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتی کہ جن کے خلاف وہ اپنے کمرے میں وہ شخصیت دن رات بیٹھ کر بات کرتی ہے. جب وہ لائیو آتے ہیں تو کیوں ان کے ساتھ بات نہیں ہوتی؟ بھائی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کے پاس چونکہ مضبوط دلائل ہیں, آپ مفتی حنیف قریشی کو اس طریقے سے لاچار اور کر دیتے کہ وہ کوئی بھی دلیل دینے کی صلاحیت نہ رکھ پاتے. آپ اس طریقے سے اپنے مضبوط دلائل دیتے, پھر دیکھتے آپ کی واہواہی کتنی ہوتی. اور ابھی آج شاید پتہ نہیں کتنے, غالباً 1 ملین 1.5 ملین کتنے بھی سبسکرائبر ہوں گے, آپ کے 5 ملین سبسکرائبر ہوتے, ہم بھی آپ کے سبسکرائبر بن جاتے, تو آپ کم سے کم اس چیز کو واضح کرتے. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور جو انجینئر صاحب ہیں, ان کے جو تلامذہ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, دوبارہ کہوں گا اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے ایفرٹس کو, لیکن ان کو چاہیے کہ وہ اپنے استاد کو کے اوپر یہ زور ڈالیں.